A very good morning and assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Sana Maria. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 30 April and the day is Friday. Now I'm going to share the screen with you. Second term syllabus, chapter number 9, a big city snapshot, chapter number 11, understanding viruses, chapter number 13, from newspaper to smartphone, chapter number 16, staying calm before the storm, and chapter number 18, Kamla's journey. We have done 4 chapters in our physical class. हम इन 4 chapters जो है वो डन कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 9, 11, 13 एंड 16. 18 भी हम स्कूल में स्टार्ट कर चुके थे. इसकी वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स हम क्लास में डन कर चुके हैं. दिस इज गेट रेडी वर्ड्स. ये हमारे पास गेट रेडी वर्ड्स थे. पैरट फिश, सी हॉर्स, मैंटा रे, सी टर्टल, मैरीन पार्क, स्नॉकल, स्पीड बोर्ड, बॉर्डर, पिटिशन, लॉ, एस्टोनिश. ये तमाम वर्ड्स को मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीड. हम कैमलास जर्नी के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इसकी जर्नी क्या थी, इसने क्या अपनी जर्नी में देखा था. ठीक है. Kamla lived in a Belize city on the coast of Belize in Central America. Her father worked for the government fisheries department and the helped to manage the 7 marine parks of the coast of the country. One day, Kamla's father invited her to visit one of the park with him. I'm going to Glover Reef this weekend, he explained. Would you like to join me? Of course, she said. During their flight to the coastal town of the Denbigh, Kamla's father explained that Glover Reef was on the edge of the Belize Barriers Reef, one of the largest coral reef systems in the world. Hundreds of fishes, hundreds of fish and coral species lived in these reefs. He said that many coral reefs around the world were dying from pollution and overfishing. From Dendriga, Kamlas and her father took a 2 hour boat ride to Glover Reef. Kamla's excitement grew as they neared a small island with its beautiful coastal line and turquoise water. It will snore it will snorkel through a park tomorrow, her father said. The next morning, Kamla and her father put on their goggles and entered the blue water of the park. The beauty and variety of underwater world astonished Kamla. Hundreds of butterflies, fish, parrotfish, and seahorse darted around her. She watched sea turtle and manta ray glad among the rainbow-colored coral. Kamla saw how the plants and animals of the reef lived together perfectly. She took many pictures with her father underwater camera. It was the most exciting experience of her life. As they left the water, Kamla and her father heard a loud noise. They turned and saw a large speedboat filled with tourists racing towards the reef area. They will scare the fish, shouted Kamla. There is nothing we can do, said her father. They are just outside of the park border. Kamla watched the boat continue around the border and then speed away. She was angry and upset. At lunch, Kamla was very quiet. When she finished eating, she turned to her father. I'm going to do something for our planet's coral reef. She said, we need to help them.
Back in Belize City, Kamla spoke to her class about coral reefs. In Global Reefs, I learned that coral reefs are an important part of our ocean biome because they are home for hundred of kinds of animal and plants. They are wonderful place to see the beauty of our ocean close up. My father taught me that coral reefs keep our shores safe from powerful waves, and the scientists can find new medicine from plants and animals they live there. When she got home, Kamlas created a petition on the internet. It read, Government of the world, please help means oceans coral reefs. Keep our coral reefs safe and healthy for everyone. In 3 weeks, 20,000 people in 38 countries signed Kamla's petitions within 1 year. Three countries passed law to protect their coral reefs. You have made a difference, Kamlas, said her father. Thank you, the coral reefs of the world. Thank you too. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द कोरल रीफ्स. अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं? जो समंदर के अंदर जो हमारे पास एक समटाइम्स जो समंदर के ऊपर भी होते हैं और इन द बिलो ऑफ द सी बिल्कुल नीचे भी होते हैं. कोरल रीफ्स क्या होते हैं? एक रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती है, पत्थर टाइप होते हैं, उनकी बात हो रही है. ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर अब क्या कमलस की क्या जर्नी थी? ये इसके जो फादर थे वो गवर्नमेंट फिशरमैन थे. ठीक है. गवर्नमेंट के फिशरीज थे. क्या थे वो? उन्होंने वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या करते थे? वो फिशेस को पकड़ते थे. ठीक है. अब वो मैरीन पार्क्स में जॉब उनके जो जॉब थी वो कहाँ थी कि वो 7 मैरीन पार्क्स को वो देखा करते थे. अब क्या मैरीन पार्क्स क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वहाँ पे लिमिट्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की. वहाँ पे कोई नॉर्मल पीपल्स जो जाके ले पर्सन जाके वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करते, उन पे कुछ लिमिटेशंस होती है क्योंकि वो जो एरिया होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है. उसको मैरीन पार्क एरिया कहा जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैरीन फिशरीज़ होते हैं, गवर्नमेंट फिशरीज़ होते हैं, वही उस जगह पे अलाउ होते हैं. ठीक है. उसके जो फादर थे वो गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट के वर्कर थे. ठीक है. अब वो क्या वहाँ पे कहाँ कहाँ जाते हैं? ग्लोवर रीफ पे जाते हैं. एक वीकेंड पे जाना होता है तो उसके फादर उसको कहते हैं क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. तो जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग अपनी बोट में जाते हैं. तो वो लोग क्या उन्होंने स्नॉकर्स लगाए होते हैं जिसके थ्रू अगर पानी में जाएं स्विम करें तो हमको वो ब्रीथ लेने में इजी रहता है, ब्रीथ जिससे हम इजीली आ सकते हैं. ठीक है. वो लोग वो वेयर करते हैं. फिर उसके बाद जब वो सी के अंदर समंदर के अंदर जाते हैं तो वो क्या डिफरेंट टाइप्स के जो है वो वहाँ पे एनिमल्स देखती हैं. उन एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की कलरफुल फिशेज होती हैं जिनमें कलरफुल पैरट फिश होती है. ठीक है. सी हॉर्स होता है, सी टर्टल होता है, मेंटल रेज होती हैं. ठीक है. जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनिस्ड होती है, बहुत ज़्यादा हैरत में आती है, बहुत ज़्यादा वो उसको अच्छे लगते हैं, अमेज्ड, बहुत ज़्यादा वो अमेजिंग एनिमल्स होते हैं. उनको देखते ही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है. वो कहती है कि ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. और वो अपने फादर के साथ होती है और वो वहाँ पे अंडर वाटर क्या गया तो वो इन सब एनिमल्स की क्या पिक्चर भी लेती है, कैमरा से क्या पिक्चर भी लेती है. फिर वो वहीं पे क्या वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ टूरिस्ट अपनी स्पीड बोट के अंदर वहाँ से जा रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन वो दे विल स्केयर द फिश शाउटेड कैमला. ठीक है. अब क्या वहाँ पे क्या था कि वो बॉर्डर से आउटसाइड थे. ठीक है. दे आर नथिंग वी कैन डू सैड हर फादर, दे आर जस्ट आउटसाइड ऑफ द पार्क बॉर्डर. वो क्या जो मैरीन पार्क का पूरा एक एरिया था वो बॉर्डर्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, वो उस बॉर्डर से वो लोग बाहर थे. ठीक है. वो जो कैमलाज होती है वो उसकी उनकी जो बोट को कंटिन्यूसली देख रही होती है. ठीक है. उसको देख के वो बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जा रहे होते हैं. अब कोरल रीफ्स के एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड में बोट को लेके जाना वो भी एक डेंजरस होता है. अब जब वो सब कुछ देख रही होती है कैमला जो होती है वो सब कुछ इसको देख रही होती है. शी वॉज एंग्री
एंड अपसेट, वो बहुत ज़्यादा एंग्री और अपसेट होती है। फिर वो लोग वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है, क्वाइट होती है जब वो अपना लंच कर रही होती है। जब वो अपना लंच फिनिश कर लेती है, फिर वो अपने she turned to her father, I'm going to do something for our planet's coral reef। अब वो कहती है कि मुझे अपने planet coral reef के लिए कुछ करना है, we need to help them। ठीक है, हमें इसको सेफ रखना है क्योंकि ये जो ओशन क्रिएचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब जो है ओशंस के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन और ओवर फिशिंग की वजह से जो कोरल रीफ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। कोरल रीफ जो है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। किस वजह, क्या सेफ्टी हो जाती है कि कोरल रीफ की वजह से जो है वो हमारा जो सी शोर होता है उसको सेफ रखती है फ्रॉम पावरफुल वेव्स की वजह से सेफ रखती है। अब क्या, साइंटिस्ट कैन फाइंड न्यू मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव देयर। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स ओशन के अंदर है, उससे क्या, अब साइंटिस्ट क्या है जो वो न्यू मेडिसिन जो है वो बना रहे हैं। जब वो अपने घर पे जाती है तो वो एक पिटीशन लिखते हैं। पिटीशन मीन एक रिक्वेस्ट होती है, जो कुछ करना हो वो गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं। मीन्स अपने उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के साइन होते हैं। ठीक है, उसने डिफरेंट कंट्रीज़ में वो अपनी पिटीशन सेंड की, उसने लोगों से उस पर साइन किया। और क्या, बहुत सारी जो वो क्या, विद इन 1 year 3 countries पास लॉ टू प्रोटेक्ट देयर कोरल रीफ्स। अब क्या है कि उसने 1 year में 3 कंट्रीज ने क्या किया, एक लॉ पास किया कि हमें अपनी कोरल रीफ्स की सेव करना चाहिए, उनको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब ये कमला ने क्या, थोड़ी सी उनके लिए क्या की, थोड़ी सी एफर्ट की और क्या, उनको कोरल रीफ को सेव किया। और उसके फादर फिर उसको थैंक यू कहते हैं कि आपने कोरल रीफ को सेव करने के लिए ये थोड़ी सी एफर्ट दिखाया। ठीक है, ये तो था हमारा चैप्टर, ये हमने स्कूल में रीड किया था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसकी ब्लैंक सिर्फ रहती थी, उसकी वजह से मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा रिपीट किया था। लास्ट क्लास में हमने इसके गेट रेडी वर्ड्स रीड किए थे एंड टुडे वी रीड इट। आज हमने इसको रीड किया और एक्सप्लेन किया। नाउ यू हैव टू डू दिस ब्लैंक्स, ये आपने ब्लैंक्स करनी है अपनी कॉपीज़ के अंदर। आपकी कॉपीज़ में इससे पहले वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स डन हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग डन हो चुकी है। आज आप लोगों ने इसकी ब्लैंक्स करनी है। वी हैव 10 ब्लैंक्स, ये आपकी 10 ब्लैंक्स हैं, आपने एज इट इज़ उसको कॉपी में डन करना है। ठीक है, इसके हवाले से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोग यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडेज सेशन इज़ ओवर। आज की जो हमारी क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।